لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر ملک سجاد اوان کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کی شاندار کارکردگی، ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا کی مؤثر قیادت میں انسداد تجاوزات کارروائیاں جاری، 12 سے زائد ٹرک سامان ضبط، کئی املاک سر بمہر، چند افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج۔ دھرمپورہ بازار تجاوزات سے مکمل کلیئر کروانے کے لیے کوششیں جاری، متعدد دکانیں سر بمہر کر دی گئی، مزاحمت پر متعدد افراد گرفتار کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ فاطمہ ارشد کا مکہ کالونی میں بڑا آپریشن، 8 ٹرک سامان ضبط کر لیا جبکہ تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ صدر بازار اور ساگر روڈ تجاوزات سے مکمل پاک، ضلع انتظامیہ کا سخت ایکشن۔ انفینٹری روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، 2 ٹرک سامان ضبط کر کے متعدد دکانیں سر بمہر کر دی۔ علامہ اقبال روڈ پر رات کی چیکنگ کے دوران 11 دکانیں سر بمہر، تجاوزات پر بلا امتیاز کارروائی کی جا رہی ہے۔ بیدیاں روڈ پر تجاوزات کے خلاف مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 2 ٹرک سامان ضبط کر لیا گیا، چند دکانیں سر بمہر۔ بھٹا چوک پر انسداد تجاوزات آپریشن، بھاری مقدار میں سامان ضبط۔ تحصیل کینٹ میں صفائی کا جائزہ، LWMC کو فوری صفائی کی ہدایت۔ دھرمپورہ نہر کے قریب ریڑھی پوائنٹ کا دورہ، قیمتوں پر مکمل عمل درآمد، ریڑھیوں کی ترتیب درست کرنے کی ہدایت۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نے گورنمنٹ ہائی اسکول اسلامیہ کینٹ کا معائنہ کیا۔ انتظامات تسلی بخش، UC 193 بنگالی میں پنجاب سوشو اکنامک سینٹر کا معائنہ کیا۔ رجسٹریشن کا عمل جاری، شہر کو تجاوزات سے پاک کرنا اولین ترجیح قرار۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا عزم، شہریوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلع انتظامیہ ہمہ وقت کوشاں، لاہور کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اون نیوز کے ساتھ میں ہوں میں نظارہ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ ہارون آباد فقیر والی کے نواحی گاؤں 122-6R میں دودھ پینے سے 2 بچوں کی ہلاکت کا معاملہ۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی آصم جاوید کا واقعے کا فوری نوٹس، فوڈ سیفٹی ٹیموں کو تحقیقات کا حکم۔ فوڈ سیفٹی ٹیمیں فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور جائے وقوع پر پہنچ گئی، حقائق کا تعین کر کے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولی کی جانب سے دودھ کے سیمپل لے کر فرانسک کے لیے بھجوا دیے گئے۔ بچوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے، لاحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ خوراک کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں، قوانین کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فیصل آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر سید شاہ رخ خبر شامل کرتے ہیں۔ سمندری سول اسپتال کے MS ڈاکٹر آصف صدیق سے یونین آف جرنلسٹ کے صدر اظہر عباس جاوید کی خصوصی ملاقات، ہسپتال میں شارٹ میڈیسن کے بارے میں تفصیلی گفتگو۔ ڈاکٹر آصف صدیق نے بتایا ہسپتال میں ادویات فراہمی کا تسلسل گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق جاری ہے۔ ہسپتال میں جان بچانے والی ادویات، ایمرجنسی میں موسمی بہار کے بڑھتے ہوئے امراض کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی میں اینٹی بایوٹک سمیت بہار کے لیے لگنے والا انجیکشن پرواز میپرازول بڑی تعداد میں سول اسپتال پہنچ گئے ہیں، جن سے 3500 سے میپرازول، 2000 سے زائد بہار کے انجیکشن اور 1000 سے زائد مختلف قسم کے اینٹی بایوٹک انجیکشن کی کھیپ ہسپتال پہنچ چکے ہیں۔ گورنمنٹ کے چیک ان بیلنس کے بعد عوام کے لیے دستیاب ہوں گے۔ MS سول اسپتال سمندری ڈاکٹر آصف صدیق نے مزید بتایا کہ عوام کو بہتر علاج کے لیے ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہترین سروس کے ساتھ اچھی میڈیسن دی جا رہی ہے۔ لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر ملک سجاد اوان کی رپورٹ کے مطابق DC لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ضلع بھر میں انتظامی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر واگا کی زیر نگرانی سبزی منڈی اور گردونواہ میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ واگا میں نجی سبزی منڈی کے دفاتر بیکری سر بمہر خلاف ورزی پر سخت ایکشن لیا گیا اور تجاوزات کے خاتمہ کے لیے عارضی کیمپ قائم کیا اور عملہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ فیصل بازار میں تجاوزات کا مکمل خاتمہ کرنے کے بعد جلو اور سوتر میل بازار میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر واگا محمد عامر بٹ نے پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری سینٹر کا دورہ کیا اور کہا کہ شہریوں کی رجسٹریشن جاری ہے۔ تحصیل واگا میں PSER رجسٹریشن کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اور شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر واگا نے UC جلو کی صفائی کا معائنہ کیا اور فوری صفائی کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ واگا میں اہم شاہراہوں سے بینرز اور سٹیمرز ہٹانے کی مہم جاری ہے۔ واگا میں سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی اور واگا میں GT روڈ پر ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر واگا کی جانب سے پھل اور سبزیوں کی قیمتوں کی چیکنگ کی گئی اور گراں فروشوں پر جرمانہ عائد۔ DC لاہور نے کہا کہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا رہا ہے اور کہا کہ تجاوزات معافی کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔
ठल से रिपोर्ट सुल्तान अहमद भट्टी। ठर में 2 माह कबल शकील अहमद भट्टी को बिजली की शार्ट लगाकर कत्ल करने वाले मुलजमान का मकतूल के वर्सा को मौत मार धमकी। मकतूल के भाई अब्दुल कादिर भट्टी, मां हानजादी, बेटी मिसबा और छोटे बच्चों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुलजमान अबू बकर गाजानी, खालिद गाजानी और उमर गाजानी ग्रोह की तरफ से मौत मार धमकियां और घर पर हमला किया है। मकतूल का भाई मुलजमान 62 अफराद हैं, आए रोज धमकियों पर तुले हुए हैं। मुलजमान ने बेटा भी मेरा कत्ल है और आए रोज लड़ाई झगड़े भी हमसे ही कर रहे हैं। मकतूल की मां, मुलजमान ने जुल्म किया है, हमसे हमारा साया छीन के कम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मकतूल की बेटी, मुझे और मेरे खानदान को मुलजमान से खतरा लाहक है। वर्सा ने IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP जैकबाबाद से इंसाफ का मुतालबा किया। सरगोदा डिवीजन को सफाई के हवाले से पंजाब का मुनफरिद और खूबसूरत शहर बनाएंगे। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम मंसूबे की डिजिटल मॉनिटरिंग का आगाज़ किया जा रहा है और इस्लाम वाली समेत सरगोदा की तमाम तहसीलों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने काम का आगाज़ कर दिया है। सूबाई वज़ीर ज़कातो अशर राना मुनव्वर गोस खान, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन के मुताबिक सरगोदा को पंजाब भर के तमाम अजला में सफाई के हवाले से पहले नंबर पर लाने के लिए कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक ढिल्लू, कंट्रैक्टर चौधरी इम्तियाज शरीफ ने इस्लामवाली में सुथरा प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामवाली जमशेद इकबाल समेत दीगर अफसरान, साबिक नाज़मीन, ताजरों, शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकर्रीरीन ने कहा कि इस्लामवाली समेत तमाम तहसीलों को खूबसूरत बनाने के लिए हमने इसका आगाज़ कर दिया, जबकि इस्लामवाली को मोटरवे से लिंक किया जा रहा है। अब इस्लामवाली पंजाब के तमाम तहसीलों में एक मुनफरिद तहसील के तौर पर सामने आएगी। इस मौका पर कंट्रैक्टर मोहम्मद इम्तियाज शरीफ का कहना था कि इंशाअल्लाह सरगोदा की तमाम तहसीलों में इस्लामवाली सफाई के हवाले से पहले नंबर पर होगी। इस मौका पर मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी भी की गई। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जो स्पेशल इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब का, उसको अमली जामा पहनाने के लिए इंशाल्लाह गली गली महल्ले महल्ले तक ये पैगाम पहुंचेगा और काम शुरू होगा और पूरा पंजाब, उसकी तमाम गलियां, तमाम महल्ले चमकेंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारा PP30 78 है और NA 85 और तहसील सिलावाली के एक एक गली गली मोहल्ले तक, कोने कोने तक ये इंशाल्लाह वर्कर पहुंचेंगे और सफाई का भरपूर इंतजाम होगा, जिसकी अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। बीबी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, वज़ीर आला पंजाब ने सुथरा पंजाब के नाम से ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सरगोदा ने यहाँ आज इफ्तिताई तकरीब थी। मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद प्रोग्राम है और जिसमें जनाब अब्दुल रज़ाक ढिल्लू साहब की क़यादत में सरगोदा डिवीज़न, वो जो कि डायरेक्टर हैं वेस्ट मैनेजमेंट के, और हमारे MP राना मुनव्वर गौस साहब, हम तीनों ने यहाँ इसका इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह ताला ये एक अवामी खिदमत का और सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होगा। आज हमने इफ्तिताह किया सरगोदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का। अल्लाह के फजल करम से हमारा ये अज़म है कि सिलावाली का शहर, सिलावाली की गलियां, सिलावाली के गांव, सिलावाली के चकूक इंशाअल्लाह ताला सरगोदा के पहले नंबर पर होंगे। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ओ न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कामयाबी, अंधा कत्ल ट्रेस मुलजमान गिरफ्तार। 22 दिसंबर 2024 को सुबह रहमत अली नामी आदमी ने इतला दी कि खानपुर बाजार में एक नाश जिसकी गर्दन कटी हुई है। वकुआ की इतला मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टीमें फौरी मौके पर पहुंच गई। मुलाहजा नाश किया तो नाश मर्द जिसका दर्द पड़ा हुआ था और गर्दन मौके पर मौजूद न थी, जिसकी वजह से नाशनाहत। मुलाहजा नाश किया तो नाश मर्द जिसका दर्द पड़ा हुआ और गर्दन मौके पर मौजूद न थी, जिसकी वजह से नाश नाकाबिले शनाख्त थी। पुलिस टीमों ने मौके से शवाहद इकट्ठे करते हुए नाश की शनाख्त के लिए इसके वर्सा और लाका की नाकाबंदी करके मौके में मुलव्विस मुलजमान की तलाश शुरू कर दी, जो कि 23 दिसंबर 2024 को मुकामी सेम नाले से मकतूल की कटी हुई गर्दन मिल गई। शेखपुरा पुलिस तफ्तीशी टीमों ने अपनी तमाम तार पेशावराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए मुकदमे की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मकतूल के करीबी रिश्तेदारान की मशकूक हरकत, सकनात और गहरे शक की बिना पर शामिल तफ्तीश किया, जिनमें मुलजमान अली रजा, शफाकत अली, पसरान अली, मोहम्मद, फरजाना बीबी, सकनाए हानपुर ने बताया कि हमने मकतूल, जो कि हमारा बड़ा भाई है, जायदाद हासिल करने की खातर बरोज वकुआ रात को मकतूल अपने घर में मौजूद था, तो हम सब ने पहले ही इसको कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था। जब वो उठकर वाशरूम जाने लगा तो मुलजम अली रजा ने इसके सर पर कुल्हाड़ी का वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गया। फिर हमने इसका सर आरी से जुदा किया। सारी रात इसकी नाश को वाशरूम में रखा। सुबह सवेरे मौका पाकर इसके धड़ को बाजार
जार में रख दिया और सर को सीम नाले में फेंक दिया। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शेहरी रजा की रिपोर्ट में। मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में हफाजी टीकाजात की कैचअप सरगर्मियों का बाकायदा इफ्तिताह। MPA अतिया इफ्तिखार, MPA अमानुएल अथर, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सदीक बलोच, MS समेत दीगर ज़रिए अफसरान भी इस मौका पर मौजूद। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्त और मेंबर पंजाब असम्बली ने बच्चों को हफाजी कतरे पिलाकर सरगर्मियों का आगाज़ किया। डिप्टी कमिश्नर और मेंबर पंजाब असम्बली की ज़ेर क़यादत हफाजी टीकाजात की सरगर्मियों बारे आगाही रैली का एहतमाम भी किया गया। CEO हेल्थ की हफाजी टीकों की कैचअप सरगर्मियों बारे डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग। जिला भर में हफाजी टीकों की कैचअप सरगर्मियां 17 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक जारी रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्च सरगर्मियों के दौरान 5 साल तक के ऐसे बच्चे जो हफाजी टीकाजात नहीं लगवा सके, इन बच्चों की 100% कवरेज को यकीनी बनाया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के 14,225 डिफाल्टर बच्चों को भी हफाजी टीकाजात लगाए जाएंगे। अगर हम अपने बच्चों को मूसी बीमारियों से महफूज रखना चाहते हैं तो इसका वाहद हल बच्चों को हफाजी टीका कोर्स बर वक्त मुकम्मल करवाना है। वालिदैन अपने बच्चों को हफाजी टीके ज़रूर लगवाएं और महकमा सेहत की टीमों से मुकम्मल ताउन करें। EPR और महकमा सेहत के अफसरान माइक्रो प्लान के तहत हफाजी टीकाजात की कैचअप सरगर्मियों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम फील्ड टीमों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की जाए ताकि 5 साल की उम्र तक का कोई भी बच्चा हफाजी टीकों से महरूम ना रहे। जिला भर की तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पर हफाजी टीकाजात लगाने के मतलूबा हदफ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सजावल से खबर शामिल करते हैं हमारे रिपोर्टर अशरफ जद के मुताबिक दीवान शुगर मिल इंतजामिया की नाक़िस पॉलिसी के तहत दीवान मोटर प्लान में हवाई फायरिंग इलाके में खौफ व हरास फैल गया। हवाई फायरिंग करने वाला का कोई भी सबब नहीं बताया गया, जिससे ये साबित होगा कि मकामी लोगों को खौफ दिलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दीवान मिल के नाअहल क्रब ऑफिसर जो खुद कीमती चीज़ें चोरी करके गरीब मस्कीन मकामी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। रात को होने वाली फायरिंग अली दिनो भट्टू की जानब से कार्रवाई की गई, जिसका कोई सबब नहीं। मकामी लोगों ने आला अहदेदारान से नोटिस लेकर नजरसानी की गुजारिश की है। खबर शामिल करते हैं जिला ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार कुलाची की इस रिपोर्ट में। ग्रैंड अलायंस जिला ओस्ता मोहम्मद कमेटी के ऑर्गेनाइजर सैयद सदर अली शाह, सतार अहमद जमाली, महबूब अली तरीन जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल्ला पंदरानी डिप्टी ऑर्गेनाइजर, मशूक अली जमाली, तारक अजीज जमाली, प्रोफेसर असद अली मुगल, अब्दुल मजीद दिनारी, कलंदर रजा खोसा, अमजद अली सोमरो, इमरान अली दाया, महबूब अली जमाली और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ओस्ता मोहम्मद की जानब से अपने हुकूक से ओस्ता मोहम्मद प्रेस क्लब रजिस्टर में एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज ग्रैंड अलायंस बलोचिस्तान की जानब से पूरे सूबे में एहतजाज मुजाहरा किया जा रहा है। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज करने का मकसद है कि जो बलोचिस्तान भर के मुलाजमीन के हकूक पर हुकूमत की जानब से डाका डाला जा रहा है, जिसको हम नहीं मानते, जिसकी हम ये मजम्मत करते हैं। हुकूमत की जानब से बलोचिस्तान भर के मुलाजमीन की पेंशन से कटौती की जा रही है और ब्यूरोक्रेसी और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जो कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म के मुतरादिफ है। इनकी ज़ियादतों के खिलाफ हम बहुत जल्द मशावरत करके अपना आइंदा लाहे अमल मुरतब करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान IMF की शराइत का डंडोरा पीट रहे हैं, जबकि इनकी शर्त है कि करप्शन, बद इंतज़ामी और ख़राब तर्ज़ हुक्मरानी को ठीक करने की शर्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान, ज़िला उस्ता मोहम्मद के तमाम मुलाज़मीन, अस्सलामु अलैकुम। आप सहाफ़ी हज़रात ने हमेशा मुलाज़मीन की आवाज़ और मसाइल को हुक्मरानों तक पहुँचाने में भरपूर किरदार अदा किया है। अब भी यही उम्मीद है कि आप हमारे मसाइल अरबाब इख्तियार और साहिब इक़्तिदार हल्कों तक पहुँचाने में हमारी भरपूर मदद करेंगे। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी अगराज़ व मकासद और हमारे मुतालबात के हवाले से बात करने से कबल हम आप हज़रात को आगाह करना ज़रूरी समझते हैं कि हाल ही में बलूचिस्तान की सतह पर तमाम यूनियंस और एसोसिएशंस ने बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के नाम से बलूचिस्तान के मुलाज़मीन का सबसे बड़ा इत्तेहाद कायम किया है, जिसमें तमाम तंजीमों की गालिब अक्सरियत मौजूद है। कम व पेश 54 तंजीमें इस इत्तेहाद में शामिल हैं। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की तश्कील खालिसतन तामीरी और इखलास पर मुबनी जज्बे से हुई है। आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से एक सोचे समझे मंसूबे और साजिश के तहत हुक्मरानों ने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ झूठा और मनफी बयानियां तश्कील देकर अपनी ज़ाती जेबें भरने आलमी मालियाती इदारों की खुशनुदी का सिलसिला जारी रखा है। एक तरफ अबतर मईशत और खाली खजाने का ढंढवारा पीटते हुए मुलाजमीन की पेंशन, अलाउंसेस और मराहत को खत्म किया जा रहा है। दूसरी जानिब पार्लियामेंटेरियंस अपनी मराहत और अलाउंसेस में कई गुना इजाफा कर रहे हैं। हमें अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना की किसी तनख्वाहों से कोई गर्ज नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि खुदारा गरीब और मिडिल क्लास तबके का भी ख्याल रखें। अजीज साहब हज़रात,
इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान IMF की शराइत का रंगवारा पीट कर ये गलत बयानी कर रहे हैं कि IMF की शर्त है कि मामला ठीक किए जाएं। हालांकि IMF ने करप्शन, बदइंतजामी और खराब तर्ज हुक्मरानी को ठीक करने की शर्त रखी है। IMF कहता है कि हर सूबे में सियासतदान और अफसरान मिलकर हर साल अरबों रुपए की जो करप्शन करते हैं इसको ठीक किया जाए, अफसरशाही की शाही अखराजात और प्रोटोकॉल कम किए जाएं। जब सरकार की नौकरी हासिल करता है तो वो जब एक मुलाजिम सरकार की नौकरी हासिल करता है तो वो इंतहाई मुस्तैद, चाको चौबंद और आला सलाहियतों का हामिल होता है। अरसा 25 साल तक वो अपनी जवानी, अपनी सलाहियतें, इस्तेदाद और अपनी कीमती वक्त देकर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से कि कल जब वो रिटायर होगा तो उम्र के आखिरी हिस्से में इससे माशी मसाइल का सामना करना नहीं पड़ेगा। मगर अब हुकूमत ये पॉलिसी ही खत्म करने के दर पे है जो लेबर कवानीन और इंसाफ के बरखिलाफ अमल है। इसका महकमों की कारकर्दगी पर इंतहाई मनफी असर पड़ेगा। रिपोर्ट अशरफ जट। SSP सजावल डॉक्टर अब्दुल हालिक पीरजादा की हदायत पर गुटखा मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। इंचार्ज CIA सजावल कुर्बान अली कमरानी की दोड़ो सिटी के करीब गांव रट्टा सोमरो में इंटेलिजेंस बेस कामयाब कार्रवाई, गुटखा मटीरियल और सफीना गुटखा की बड़ी खैप पकड़ ली। बैनर सूबाई गुटखा सप्लायर ग्रोह के 2 अहम करिंदे बिलाल अहमद खान और अदनान अहमद खान सकनाए कोयटा बलोचिस्तान को गुटखा मटीरियल सफीना गुटखा से बड़े डंपर समेत गिरफ्तार कर लिया है। डंपर की जामिया तलाशी के दौरान 500 कट्टे गुटखा सुपारी और 5 कट्टे सफीना गुटखा बरामद गुटखा सुपारी और सफीना गुटखे की मालियत 80 लाख से बताई जा रही है। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना डेरो पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान जर्नल फोरम की जानिब से सीनियर सहाफ़ी अमीर मोहम्मद खान ने खालिद चीमा और मोहम्मद अदील के एजाज़ में एक नशिस्त पज़ीराई जद्दा के मकामी रेस्टोरेंट में रखी, जिसमें पाकिस्तान ओवरसीज़ मीडिया फोरम और यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम के नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की, जिसमें सीनियर सहाफ़ी खालिद चीमा और मोहम्मद अदील की इस्लामाबाद में होने वाली हालिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन कन्वेंशन में शिरकत को सराहा गया। कन्वेंशन के दौरान उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालक, वज़ीर इत्तलात अता ताड़र और कायम मकाम सदर पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल, पाकिस्तान में इनकी इन्वेस्टमेंट के मौके और दीगर कई मामलात पर गुफ्तगू हुई। तमाम सहाफ़ी हज़रात ने इनको कन्वेंशन में शिरकत को अपने लिए एजाज़ समझा और इत्मीनान का इजहार किया। खालिद चीमा और मोहम्मद अदील ने सबका शुक्रिया अदा किया। समंदरी में वफाकी मुसब की हदायत पर फेस्को ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद। कमिश्नर IRD वसीम अख्तर ने अवाम की शिकायत सुनकर मौके पर हल करने की हदायत की। इस काविश को ज़हीब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खूब सराहा और उनका कहना था कि एक्सीएन मोहम्मद अहमद और SDO राना कमर जमान अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। समंदरी वफाकी मुसब की हदायत पर फेस्को ऑफिस में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। कचहरी कमिश्नर IRD वसीम अख्तर ने लगाई एक्सीएन मोहम्मद अहमद SDO कमर जमान की शिरकत। खुली कचहरी में 15 से ज़ायद दरख्वास्तें मसूल हुई। कमिश्नर IRD ने साइलिन के मसाइल मौके पर हल करने की हदायत की। साइलिन वफाकी महकमों के खिलाफ शिकायत वफाकी मुसब को दें। कुछ दरख्वास्तें मौके पर, कुछ दरकार वक्त पर हल की जा रही हैं। ज़हीब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स और असद अब्बास नायब सदर मरकजी अंजमन ताजरान मंडी बाजार ने एक्सीएन मोहम्मद अहमद की काविशों को खूब सराहा और कमिश्नर IRD वसीम अख्तर का समंदरी आमद पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं मटियारी से। हमारे नुमाइंदे राना नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाई सिंध और सिंध की ज़मीनों की फरोख्त के खिलाफ बडशाह में हज़ारों खारियों का इज्तिमा। मुल्कगीर खारी कॉन्फ्रेंस सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सराइकी वसेब समेत मुल्क भर के खारी रहनुमाओं ने 6 नए कनालों और कारपेट फार्मिंग मनसूबों को मुस्तरद कर दिया। नए कनालों और डेमों की तमीर फ़ौरन रोकने और दरियाई सिंध के तारीखी बहाव की बहाली का मुतालबा किया। कारपोरेट फार्मिंग और 6 नए कनालों के खिलाफ अवामी तहरीक के तावन से पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम बडशाह में मुल्क की खारी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के किसानों ने दरियाई सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारी अक्सरियत से करारदादें मंजूर की और ग्रीन पाकिस्तान मनसूबों को किसान दुश्मन मनसूबा करार देकर मुस्तरद कर दिया। ज़राई टैक्स बिल को ज़राअत पर हमला करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया गया है। IMF और दीगर साम्राज्यी इदारों के कहने पर मीडिया और अदलिया को कैद कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम और पीक तरमीमी बिल साम्राज्यी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूर
किए गए हैं। इरसा एक्ट में तरमीम करके दरियाई सिंध का पानी सिंध से छीन कर गैर मुल्की कंपनियों को फरोख्त करने की साजिश की गई है। रहनुमाओं ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान, ज़राई इनकलाब और उड़ान पाकिस्तान जैसे खुशनुमा नारों के जरिए किसानों को इनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, मलक फरोख्त किया जा रहा है। ज़मीनें गैर मुल्की कंपनियों के हवाले करके मुल्की सालमियत को दो पर लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाकर सिंध की आवाम से सब कुछ छीन लिया। अब बिलावल शहबाज इत्तेहादी हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान का नारा लगाकर सिंध को रेगिस्तान बनाने की साजिश कर रही है। ओमान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के मकसद से मरूफ समाजी शख्सियत महबूब राजपूत ने पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान महबूब राजपूत ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए एक नए हस्पताल के क़याम पर जोर दिया, जिससे न सिर्फ सेहत की सहूलियात में बेहतरी आएगी बल्कि इंतकाल कर जाने वाले पाकिस्तानियों की लाशों को पाकिस्तान मुंतकिल करने में भी मदद मिलेगी। महबूब राजपूत ने सफ़ीर बुखारी को बताया कि ओमान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी को सेहत के शोबे में कई मुश्किलात का सामना है। तो पर इमरजेंसी की सूरत में उन्होंने कहा कि हाल ही में कई पाकिस्तानी शहरियों की अमवात हुई हैं, जिनकी लाशों को पाकिस्तान मुंतकिल करने में भी मुश्किलात पेश आई हैं। उन्होंने जोर दिया कि एक नए हस्पताल के क़याम से न सिर्फ इलाज मुआवजे की सहूलियात बेहतर होंगी बल्कि ऐसे वाक़यात में भी मदद मिल सकेगी। सफ़ीर पाकिस्तान सैयद नवीद सफदर बुखारी ने महबूब राजपूत के ख्यालात को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बेहतरी इनकी अवलीन तरजीह है। उन्होंने वादा किया कि पाकिस्तानी सफारतखाने नए हस्पताल के मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इंतकाल कर जाने वाली पाकिस्तानियों की लाशों को पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए भी जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। इस मुलाकात में पाकिस्तानी सफारतखाने के दीगर एहलकारान भी मौजूद थे, जिन्होंने इस मंसूबे की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में ये इक़दाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए एक तारीखी कदम साबित होगा। महबूब राजपूत ने इस मौका पर कहा कि ओमान में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बेहतरी के लिए हमेशा कोशियां रहेंगे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नए हस्पताल के मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तानियों को बेहतर सेहत की सहूलियात मैसर आएंगी बल्कि इंतकाल कर जाने वाले अफराद के अहल खाना को भी सहारा मिलेगा। ये मुलाकात पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए एक अहम पेशरफ्त है, जिससे सेहत के शोबे में बेहतरी की नई राहें खुलेंगी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह 773वें उर्स मुबारक की सैरोज़ा तकरीबात का इफ्तिताह कायम मुकाम गवर्नर सिंध स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस कादर शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर फातह ख्वानी करके किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज शाह शराजी, सूबाई सेक्रेटरी सबकतुल्लाह मेहर, डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गज़नफर अली कादरी और SSP जामशोरो मोहम्मद ज़फ़र सदीक छांगा भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गज़नफर अली कादरी ने कायम मुकाम गवर्नर सिंध को यादगारी शील्ड पेश की। कायम मुकाम गवर्नर सिंध ने गरीब मुस्तक खवातीन में कपड़े और तोहफे तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि आज यहाँ मुल्क, कौम और सूबा सिंध जो कि औलिया कराम की धरती है के लिए दुआ है कि उन्होंने कहा कि सूबा सिंध तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी उर्स मुबारक के हवाले से इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गज़नफर अली कादरी और SSP जामशोरो मोहम्मद ज़फ़र सदीक छांगा की जानब से उर्स मुबारक के दौरान बेहतरीन इंतजामात करने पर इनकी कारकर्दगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि उर्स मुबारक की सारोज़ा तकरीबात खैर खूबी से इख्तिताम पजीर होंगी। शामिल करते हैं दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां आरा मंजूर भट्टो ने दीपालपुर जिला ओकाड़ा का खुसूसी दौरा किया। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 2 खवेली लखा में वाइस चेयरपर्सन ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद माहौलियाती बेहतरी और सब पाकिस्तान की जानब कदम बढ़ाना है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा के दौरे में उन्होंने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत 6ठी से 10वीं जमात तक की तालबात को तलीमी वज़ाइफ के लिए रजिस्ट्रेशन और रकूम की शफाफ तकसीम का जायजा लिया। तालबात के वालिदैन से बातचीत भी की और इनके मसाइल के फौरी हल के लिए हदायत भी दी। वाइस चेयरपर्सन का कहना था कि ज़ेवर तालीम प्रोग्राम का मकसद तालबात को महाना वज़ाइफ के जरिए रोशन मुस्तकबिल के लिए मियारी तालीम मुहैया करना है। मज़ीद बराम वाइस चेयरपर्सन ने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन और वज़ाइफ की तकसीम के हवाले से 4 रोज़ा कैंप साइट सरगर्मी मुहिम के इनेकाद की भी हदायत दी। दौरे के दौरान जहाँ आरा मंजूर भट्टो ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद से इनके कैंप ऑफिस में खसूसी मुलाकात भी की और पंजाब सोशो इकॉनमिक रजिस्ट्री PSER के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली। वाइस चेयरपर्सन का कहना था कि PSER में रजिस्ट्रेशन ग्रानों को हुकूमत के फलाही मनसूबों से बराह रास्त मुस्तफीद होने के मौके मैसर आएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।